Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of third chapter, that is question number 7. Find and write the area of the shapes given below. नीचे दिया गया शेप का एरिया लिखकर बताना होगा. सो फर्स्ट शेप दैट इज, तो फिर ये जो शेप दिया गया है ये शेप का कैसे एरिया काउंट करेंगे. तो 1 कंप्लीट स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर काउंट करना, बाद में 1 मोर देन हाफ स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर का काउंट करना, बाद में 2 हाफ स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर काउंट करके इसी तरह आपको बताना होगा. तो फर्स्ट शेप में एरिया, फर्स्ट शेप का एरिया काउंट करते हैं. सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर, कितना कंप्लीट स्क्वायर है 1 2 3, 3 कंप्लीट स्क्वायर मीन्स 3 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी मोर देन हाफ स्क्वायर 1 2 3, so 3 more than half square means 3 centimeter. 3 plus 3 that is equal to 6 square centimeter. तो मैंने वही लिखा. So area of the shape A that is equal to 6 square centimeter. Then second shape that is B. So how many complete square are there 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 complete square that is equal to 9 centimeter. So the area of shape B that is equal to 9 square centimeter. Then third shape that is C. So how many complete square 1 2. So 2 complete square means 2 centimeter. Then how many more than half square 1 2. So 2 more than half square means 2 centimeter. So 2 plus 2 that is equal to 4 square centimeter. तो मैंने वही लिखा. Then D, set D. So how many complete square 1 2 3 4 5 6. So 6 complete square that is equal to 6 centimeter. Then how many half square 1 2. 2 half square means 1 centimeter. 6 plus 1 that is equal to 7 square centimeter. So area of shape D that is equal to 7 square centimeter. Then what is the area of shape E? So first you count how many complete square 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So how many complete square 18 complete square. So 18 complete square that is equal to 18 centimeter. Then how many half square 1 2 3 4 5 6. So 6 half square that is equal to 3 centimeter. 18 plus 3 that is equal to 21. So 21 square centimeter. The area of shape E that is equal to 21 square centimeter. Then next come to the shape F. So first you count how many complete square are in the shape F. 1 2 3 4. 4 complete square that is equal to 4 centimeter. Then you count how many more than half square 1 2 3 4. So 4 more than half square that is equal to 4 centimeter. 4 plus 4 that is equal to 8 square centimeter. Then next come to the question number 8. Complete the given shape in such a that we get the area as given above it. तो नीचे जो शेप दिया गया वो शेप का कंप्लीट कीजिए. कैसे, तो फिर तो हर नंबर में जो शेप का एरिया दिया गया तो वही हिसाब से आप वो शेप को कंप्लीट कीजिए. तो फर्स्ट नंबर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शेप दिया गया शेप को कंप्लीट करना, जैसे कि ये जो शेप का एरिया कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए. तो देखो मैंने इस तरह ड्रॉ किया, तो इसी तरह ड्रॉ करके ये जो शेप को कंप्लीट किया. तो अभी काउंट करते हैं ये जो शेप है ये शेप का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है कि नहीं. सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी हाफ स्क्वायर 1 2 3 4. 4 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 8 plus 2 that is equal to 10 square meter.
So the area of this shape is 10 square centimeter. देन सेकेंड नंबर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर ये शेप को आप कंप्लीट कीजिए, जैसे कि ये जो शेप का एरिया कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह ड्रॉ किया। तो अभी काउंट करते हैं ये जो शेप का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है कि नहीं। सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर, 2 कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी हाफ स्क्वायर, 1 2 3 4। So 4 half square that is equal to 2 centimeter. 2 plus 2 that is equal to 4 square centimeter. Then third number 2 square centimeter। तो फिर ये जो शेप को आप कंप्लीट कीजिए, जैसे कि ये जो शेप का एरिया कितना होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह ड्रॉ किया, कंप्लीट किया शेप को। तो अभी काउंट करते हैं ये जो शेप का। तो हाउ मेनी हाफ स्क्वायर, 1 2 3 4। सो 4 हाफ स्क्वायर दैट इज इक्वल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर ये जो एरिया का, ये जो शेप का एरिया कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करके बताना होगा। Then next come to the question number 9. Arrange 6 shapes having 6 square in different ways on the grid, then find and write their area. Arrange 6 shape having 6 square। तो आपको 6 से बनाना होगा 6 स्क्वायर लेकर। बाद में वो जो शेप बनाया उसका एरिया कितना निकालना होगा। तो पहले के एग्जाम्पल दिया गया, देखिए ये शेप का नाम ए है। ये शेप में कितना स्क्वायर लेकर बना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो फिर बाद में ये जो शेप का एरिया कितना है दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर हमको ऐसे ही 5 शेप या 606 से बनाना होगा। तो हर शेप में कितना स्क्वायर होना चाहिए, 6 स्क्वायर होना चाहिए। बाद में उसका एरिया कितना निकालना होगा। तो पहले एक शेप दे चुके हैं, अभी हमको 5 से बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बी करके नाम के एक शेप बनाया, जो शेप में कितना स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6। बाद में ये जो शेप का एरिया कितना है दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में सी का नाम से एक मैंने एक शेप बनाया। तो ये जो शेप में कितना स्क्वायर है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये शेप का स्क्वायर एरिया कितना है दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में डी शेप नाम कर एक मैंने शेप बनाया, तो 6 स्क्वायर लेकर। तो ये शेप का एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में ई नाम पे एक मैंने शेप बनाया। तो इस शेप में कितना स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है। तो इस शेप का स्क्वायर कितना है, सॉरी इस शेप का एरिया कितना है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में ए नाम के एक मैंने शेप बनाया, तो 6 स्क्वायर को लेकर। तो फिर ये शेप का एरिया कितना है दैट इज ऑल्सो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करके बताना होगा, नहीं तो आप हिसाब से ड्रॉ करके बताना होगा। Then question number 10.
A rectangle of 8 square centimeter is given below. Draw true straight line and divide the rectangle into one small rectangle and two equal triangles. Find and write the area of the new shape form. A rectangle of 8 square centimeter is given below. A rectangle of 8 square centimeter is given below. तो एक ट्रायंगल दिया गया, जो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन, तो आपको टू स्ट्रेट लाइन ये रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ करना होगा एंड डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू वन स्मॉल रेक्टेंगल. फिर बाद में ये रेक्टेंगल को वन स्मॉल रेक्टेंगल डिवाइड करना होगा एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स, और बाद में टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा. फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द न्यू शेप फॉर्म. बाद में तो टू स्ट्रेट लाइन ये रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ करने के बाद जो न्यू शेप है वो न्यू शेप का एरिया कितना निकालना होगा. तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया रेक्टेंगल के ऊपर, बाद में सेकंड स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया. तो अभी देखो द स्मॉल रेक्टेंगल कौन सा है, सो दिस वन इज द स्मॉल रेक्टेंगल. तो स्मॉल रेक्टेंगल का सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल. तो एरिया कितना है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज ए ट्रायंगल इसको 1 लेते, ए ट्रायंगल 2 लेते. तो अभी काउंट करते कितना एरिया है. सो हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर, 1 2 complete square. Then how many more than half square, 1 2. So more than 2 half square that is equal to 2 centimeter, 2 plus 2 that is equal to 4 square centimeter. Then area of triangle 2. बाद में triangle 2 का एरिया कितने, how many complete square, 2 complete square that is equal to 2 centimeter. Then how many more than half square that is equal to 2, more than 2 half square that is equal to 2 centimeter, 2 plus 2 that is equal to 4 square centimeter. Then next comes the question number 11. Which of the following object has more perimeter? Tick in the given below. Which of the following object has more perimeter? तो फिर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर ज़्यादा है. टिक इन द गिवन बिलो. तो नीचे में आप वो जो नीचे जो फिगर का जो ऑब्जेक्ट का नीचे आप जो ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर ज़्यादा है तो उसके नीचे आप टिक मार दीजिए. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट कंपेयर कीजिए. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो लेंथ ब्रेथ है वो ज़्यादा है, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो लेंथ ब्रेथ है कम है. तो फिर कौन सा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा. तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टिक मार दिया. Then next comes the question number 12. Find and write the area of the shaded part of the shapes given below. तो ये जो शेप दिया गया, ये शेप का शेडेड पार्ट का एरिया निकालना होगा. तो फर्स्ट नंबर में देखिए ये जो शेडेड पार्ट है तो इसका एरिया कितना है, 1 2 3 1, लेंथ कितना है 1 2, ब्रेथ भी 1 2, सो 2 2, सो 2 इंटू, सो ये कौन सा शेप है, एक स्क्वायर का शेप है. तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, साइड स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन सेकेंड फिगर शेडेड पार्ट को देखिए, तो अभी काउंट कीजिए हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर, 1 2 3, बाद में सो 3 कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल 3 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी हाफ स्क्वायर, 1 2 3. So 2 half square that is equal to 1 centimeter. So 3 half square means 1.5. So 3 plus 1.5 that is equal to 4.5 square centimeter. The next comes the question number 13. Find and write the area of the shapes given below. तो नीचे दिया गया शेप का एरिया कितना हमको लिखकर बताना होगा.
So first shape A. So now we count how many complete square are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 complete square, that is equal to 6 centimeter. तो मैंने बोला क्या 6 square centimeter. Then second step, that is B. How many complete square are there? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 complete square, that is equal to 5 centimeter. So 5 square centimeter. Then shape C. So how many complete square? 1, 2, 3, 4. So 4 complete square, that is equal to 4 centimeter. So the area of shape C, that is equal to 4 square centimeter. Then D. So how many complete square are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 complete square, that is equal to 6 centimeter. So area of shape D, that is equal to 6 square centimeter. Then what is the area of shape E? So first we count how many complete square are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 complete square, that is equal to 9 centimeter. So the area of shape E, that is equal to 9 square centimeter.